Hello everyone. I hope you all are doing well and you should do well. I know that we are going through a tough time, but at the same time I want to say that अगर अच्छा समय नहीं टिक सका, अगर जो अच्छा समय जो चल रहा था अगर वो नहीं टिक सका तो बुरा समय कब तक टिकेगा. So I hope that this pandemic time situation shall pass and it will pass. So our today's topic is the 9 gold medals, which is a part of the English ICSE 10th syllabus. It is a poem written by David Ruth. So I will read from the book and simultaneously I will explain you. So David Ruth is an American poet. He was interested in his childhood, like वो singing में उसको interest था, वो कुछ rock bands होते हैं, rap song उनमें interest था, तो वो rap song करते करते उसको थोड़ा सा poetry के तरफ वो attract हुआ. So he wrote a poem 9 gold medal and सबसे पहली बात कि जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं we should know about its poet, कि ये लिखी किसने है, ये रचना किसकी है. So the person who writes a poem is called poet. The person who writes a story is called an author. The person who writes a novel is called a novelist. And the person who writes a play, like The Merchant of Venice is a play, we can say. So that is known as a playwright. So this was some about the poet David Ruth. Now I will give you an overview of the poem कि इसमें है क्या. Then there are 8 stanzas in the poem. 8 stanzas, 8 paragraphs इस poem के. उन paragraphs को हम एक एक करके पढ़ेंगे. Stanza 1 to 8 in detail. So first thing about the poem is that the many athletes have taken part in an Olympics event. It is an Olympics event, but it is a special event because जो वो no athlete है ना, they are having some physical problem. They are physically challenged people. So that is why we call that Olympic as Special Olympics. So what is written? Many athletes gathered together from all over the country to run for gold, silver and bronze medals. बहुत सारे एथलीट्स जो हैं बहुत सारी कंट्रीज में से आए, सो इससे आपको क्या पता चला? देयर इज एन इंडिकेशन दैट इट इज एन इंटरनेशनल इवेंट. ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, दैट इज क्लियर. और वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ने आए हैं. वी हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड, ट्रेनिंग फॉर वीक्स एंड मंथ्स फॉर द कंपटीशन के लिए दे हैव practiced hard. They have done strenuous training, strenuous exercise. So whenever you will listen the word strenuous, strenuous, that means hard training. उन्होंने दिन भर दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने उन्होंने बहुत सारी इसके लिए तैयारी की. It was the final event of the day. The excitement soared up and the spectators gathered to cheer the participant. सारे इवेंट्स हो चुके थे. उस दिन का वो फाइनल इवेंट था उस ओलंपिक का. एक्साइटमेंट पीक पर थी, एट द हाईएस्ट लेवल. और जो स्पेक्टेटर थे वो इकट्ठे हुए थे कि जो पार्टिसिपेंट उनको चीयर करने. The 9 athletes took their positions for the 100 meters race and were waiting for the signal to start the race.
9 के 9 एथलीट ने अपनी पोजीशंस ले ली, लाइक जो अपने रेस के टाइम पोजीशन लेनी होती है 100 मीटर्स रेस, और वो वेट कर रहे थे सिग्नल के लिए कि जो कब रेस जो है वो स्टार्ट हो. With the signal given, the runners charged ahead, but the smallest among them lost his balance and fell. जब सिग्नल दिया गया सब रनर्स भागे, जैसे बंदूक में से गोली निकलती है, दैट स्पीड, उस स्पीड से सब भागे. लेकिन उस समय से जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे यंग था, सबसे छोटा, वो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया. He cried as he felt his dreams and efforts had been wasted. वो जब गिरा, ज़मीन पर गिर गया, ही क्राइड, वो रोया कि उसको लाइक ऐसे लगा कि मैंने इतने महीने, एक साल ट्रेनिंग की, शायद अब जो मैंने ड्रीम देखी थी मेडल की, जो मैंने एफर्ट्स किए थे इसके लिए, वो सब वेस्ट हो चुके. द अदर 8 रनर्स स्टॉप्ड राइट अवे एंड टर्न्ड बैक टू हेल्प हिम स्टैंड. यहाँ पे एक एंटी क्लाइमेक्स हो गया. क्लाइमेक्स ये होना चाहिए था कि वो गिर गया और बाकी 8 एथलीट्स ने रेस कंटिन्यू की और उनमें से कोई सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज जो है वो जीते. लेकिन यहाँ पे एक एंटी क्लाइमेक्स, एंटी मीन्स ऑपोजिट हो गया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. क्या हुआ, दैट जो 8 रनर्स थे वो अपनी रेस छोड़ के वो वापस आए, उस यंग एथलीट को खड़े होने में हेल्प. All the 9 runners joined hands then and continued to walk on 100 meters race track. वो उन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम लिए. जो 100 मीटर रेस थी वो एक वॉक, एक जैसे अपन चलते हैं मॉर्निंग वॉक जैसे, उसमें कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो एक जने, एक एथलीट के कारण बाकी 8 एथलीट्स ने कंपटीशन के स्पिरिट को साइड में रख के सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज को आगे. द बैनर अबाउट दैट रेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट. आपको बताई थी कि स्पेशल ओलंपिक्स, उस ओलंपिक का नाम भी स्पेशल था और उसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ भी हो रही थी कि 8 एथलीट्स जो हैं वो अपनी रेस छोड़ के उसको हेल्प कर रहे हैं, जो यंगेस्ट उनमें से गिर चुके. All the 9 runners crossed the finish line together. The race ended with all of them winning a gold medal. The smiling faces of the 9 runners and the banner above rightly portrayed the spirit of sportsmanship. जो सारे 9 रनर्स थे उन्होंने फिनिश लाइन इकट्ठे क्रॉस की, और इकट्ठे फिनिश लाइन क्रॉस करने के कारण जो वहाँ पे डिग्नेटरीज थी, जो जजेस थे, उन्होंने हर एक को एक गोल्ड मेडल दिया. ऑल ऑफ देम वॉन ए गोल्ड मेडल. और वो 9 रनर्स के जो स्माइलिंग फेस थे, उनमें जो खुशी थी, और जो स्पेशल ओलंपिक्स का टाइटल था दिया गया उस ओलंपिक्स को, इससे पता चलता है कि जो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप है वो इन्होंने कितनी अच्छे से शो की है, पोर्ट्रे की है. So now we are going to do the poem in detail. Stanza 1. Stanza 1. Firstly, I will read the text. The athletes had come from so many countries to run for the gold, for the silver and bronze, many weeks and months in training, all building up to the games. ये आपको मैंने पहले इसका ओवरव्यू दिया है. फर्स्ट स्टैंजा इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस. वो क्या बताना चाह रहा है कि जो एथलीट्स है वो बहुत सारी कंट्रीज से आए हैं. इससे पता चलता है इट इज़ एन इंटरनेशनल इवेंट, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और ब्रॉन्ज के लिए, एक मेडल जीतने के लिए, कि जो उन्होंने वीक्स एंड मंथ्स जो स्ट्रेनियस ट्रेनिंग एक्सरसाइज उन्होंने किया फॉर दैट, ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स. गेम जो था उसके लिए तैयार होने के लिए. सो व्हाट स्टैंजा 1 इज सेइंग, intro to athletes
and showing their hunger for medal. This is in the stanza 1. Now we will discuss stanza 2. Just a minute. Stanza 2. All round the field, spectators were gathered, cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. इसमें क्या कि जो सारे फील्ड चारों और जो है वो स्पेक्टेटर्स जो हैं वो सपोर्ट करने आए हैं, सब यंग वुमेन एंड मैन को चीयर करने के लिए आए हैं, तो वो गैदर्ड हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और जो फाइनल इवेंट है डे का वो अप्रोच कर रहा है, वो आने वाला है, और वो जो लास्ट रेस है वो अबाउट टू बिगिन, वो स्टार्ट होने जा रही है। सो फाइनल इवेंट ऑफ द डे मैंने आपको पहले भी बताया था कि द फाइनल इवेंट ऑफ द डे कौन सा है? द 100 मीटर्स रेस इज द फाइनल इवेंट। सो स्टैंजा नंबर 2, what they are saying, the scene of field, यानी जो ग्राउंड है, the scene of field. Stanza number 3. The loudspeakers called out the names of the runners, the 100 meters the race to be run, and 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. लाउड स्पीकर में उन सभी रनर्स के नेम लिए गए। 100 मीटर जो रेस है वो स्टार्ट होने जा रही है। 9 यंग एथलीट्स वहाँ पे डिटरमाइंड यानी फोकस्ड होके खड़े हैं, एंड पोइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, कि जो गन की साउंड के लिए बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। सो स्टैंजा 3 दे आर शोइंग वेट ऑफ athletes to begin the race. Stanza 4. The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners on hearing the sound. But the youngest among them stumbled and staggered and fell on his knees to the ground. सिग्नल दे दिया गया, पिस्टल जैसे चला दी गई, और जैसे ही पिस्टल जैसे बंदूक में से गोली निकलती है वैसे जो रनर्स हैं वो भागना स्टार्ट किया उन्होंने साउंड को सुनकर। बट जो उनमें से यंगेस्ट है वो स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड मतलब बैलेंस बिगड़ गया उसका, एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड, और वो घुटनों के बल ग्राउंड पर गिर गया। सो स्टैंजा 4, व्हाट इट स्टैंजा 4 इज टेलिंग टू अस, race started and the youngest athlete fell. Youngest athletes जो है वो गिर गया। Stanza number 5. He gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling the story, now it's a strange one, but here's what occurred. जब पोएट था ना वो भी वहाँ पे फील्ड पे मतलब उस इवेंट को देखने गया था, तो वो वहाँ से बता रहा है कि वो रोया, फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने इतने वीक्स एंड मंथ्स ट्रेनिंग की, बट दैट एवरीथिंग इज वेस्टेड, उसके अब
ही वॉज होपलेस होपलेस, तो उसके जो ड्रीम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बट जो पोइट वो कह रहा है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, स्टैंड से, मतलब यहाँ से इवेंट को देख रहा हूँ, अब जो मैं आगे स्टोरी बताऊंगा ना, दैट इज़ ए स्ट्रेंज वन, बहुत अजीब है। सो अब इन द स्टैंजा नंबर 6 वी विल कम टू नो व्हाट इज द स्टोरी that is shocking for us. Strange means अजीब. So stanza number 5 is that is showing us disappointment of youngest, that his efforts, जो उसने कोशिश की थी, that his efforts are wasted. Stanza number 6. The 8 other athletes stopped in the tracks, the ones who had trained far so long to compete. One by one they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. Lad means जो young man को lad बोला गया यहाँ पे, LAD. जो 8 अदर एथलीट्स हैं वो अपने ट्रैक पर रुक गए, अपने कंपटीशन की स्पिरिट को पीछे छोड़कर उन्होंने सोचा दैट जिस कंपटीशन के लिए उन्होंने इतने वीक्स मंथ से स्ट्रेनियस ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग की थी, उस इवेंट, उस मेडल को छोड़कर वो वापस आए वन बाय वन, एंड जो वो गिर गया था यंगस्टर उसको हेल्प की. सो helping, stanza 6 is showing us helping hands of 8 other athletes to help the lad, Stanza number 7. Then all 9 runners joined hands and continued the 100 meters reduced to a walk, and banner above that read Special Olympics could not have been nearer the mark. सारे 9 runners ने हैंड्स ज्वाइन किए और वो चलते गए और फिनिश लाइन तक इकट्ठे पहुंचे. जो 100 मीटर रेस थी वो एक वॉक में कन्वर्ट हो गई थी. So stanza 7 is only saying that 100 meters race is converted to a walk. That is, and Special Olympic. उसके ऊपर स्पेशल ओलंपिक एक बड़ा सा वो लगा था, जैसे आप कहते हैं पोस्टर, तो स्पेशल ओलंपिक्स लिखा भी हुआ था और वो स्पेशल ओलंपिक्स लग भी रहा था. लास्ट स्टैंजा नंबर 8. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and the banner above and 9 smiling faces said more than these words ever will. Said more than these words ever will. So, climax of poem. All wanted gold medal. So all won a gold medal for showcasing their human values of kindness, compassion, cooperation. They showed kindness to the youngest athlete. They felt bad for him, so they all other athletes came back and they crossed the finish line together, and for this reason the dignitaries, the judges, awarded all of them with a gold medal. That's why the poem name come to us like that, 9 gold medal. This was stanza by stanza explanation in detail. Now we will discuss about the poetic device, theme and the message of the poem, and that's it for today. So if you want to take the screenshot of this
stanza by stanza explanation you can take. So you can take it now. Just so I hope you have taken. सो एक तो ये पोइम है नैरेटिव पोइम। नैरेटिव पोइम का मतलब ये आ गया यहाँ पे कि है पोइम, पर ये एक पोइम के थ्रू एक स्टोरी को बताना चाह रहे हैं कि पहले क्या हुआ, उन्होंने तैयारी की, फिर वो गए, फिर एक गिरा, फिर वो सारे वापस आए। तो नैरेटिव पोइम इज दैट पोइम विच टेल अस अ स्टोरी। और इसके अंदर पोएट खुद भी शामिल था। पोएट ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने क्या देखा। स्ट्रक्चर इज दैट इस पोइम में 8 स्टैंजास थे, 8 स्टैंजास, एंड ईच स्टैंजा कंटेन्ड 4 लाइन्स। सो दिस इज the structure. The poetic devices are 2 only. This one is the alliteration. Alliteration होते हैं जो vowels होते हैं ना, A, E, I, O, U, उनको छोड़ के अगर कोई वर्ड्स पास पास आए, लाइक his dreams dashed in the dirt, you can see ये alliteration consonant sound अगर पास पास आए, you can say नेड़े नेड़े, so then we will can say it as alliteration. That is known as alliteration. और ये एक पोइम को थोड़ा एनहेंस करने के लिए होता है। और वन इज दैट ही स्टम्बल्ड एंड staggered. And the last is the climax. So this poem has a climax. Not every poem has a climax because not every poem is a narrative poem. Because अगर narrative poem होगी तभी उसका एक climax होगा, क्योंकि narrative poem is a poem which tells a story. तो climax इसके अंदर आपको देखने को मिलता है. This is climax is used in this. So you can take a screenshot. This इसको आप बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस मतलब क्या? पोएटिक डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस जो पोएट ने यूज़ किए पोएम को एनहांस करने के लिए, पोएम को अच्छा शो करने के लिए, पोएम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दिस इज द पोएटिक डिवाइसेस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल कैरी ऑन विथ थीम एंड द मैसेज ऑफ द पोएम. Okay. Theme, just 2 themes and message. Themes, you can say celebration of human values. So I will just, I am giving you an, I am writing a theme and I am explaining it. Just I am explaining it so you can hear it and write it if you want and just remember it in your mind. कई कहते हैं कि that आप इसको हिंदी में करना चाहिए. हिंदी I am also and explaining in Hindi also. But ये है कि जब when we have to write in exams these types of questions, so अगर आपके दिमाग में अपन अगर हिंदी में पोएम को समझ रखा है तो अपने दिमाग में इंग्लिश के एग्जाम में हिंदी चल रही होगी और हिंदी में जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट करने में आते हैं सम टाइम गड़बड़ हो जाती है. सो इससे अच्छा पहले ही अपन ने इंग्लिश में उसको रिवाइज किया हो, उसको स्टडी किया हो, उसको उसके क्रिटिकल एनालिसिस पढ़े हो. सो इंग्लिश में अगर आपने उसको रिवाइज किया पढ़ा है, सो इन एग्ज़ाम
there will be no difficulty for us to make answers in English language. So, celebration of human values, that they did strenuous exercise for weeks and months, but leaving behind their competition, leaving behind their medal determination, medal focus, they helped the young athlete, the lad. So what human values have been shown here? That is the kindness, cooperation, empathy. These are. Second is the spirit, true spirit of स्पोर्ट्समैनशिप, जो शायद रियल लाइफ में आप आपको आजकल कहीं देखने को मिल जाएगा. ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप पे उन्होंने, ट्रू स्पिरिट स्पोर्ट्समैनशिप पे उन्होंने दिखाई कि उन्होंने खुद के अपना मेडल का बलिदान देकर उसका किया और उन्होंने फिनिश लाइन को इकट्ठे क्रॉस किया और और उनको उनका अवार्ड भी मिल गया. ईच ऑफ देम वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर द कंपैशन फॉर ए फेलो कॉम्पिटिटर. मैसेज ऑफ द पोएम, you can write it also, I will explain it. World needs more cooperation than competition. Competition जो है ये आजकल की ऐसी चीज है, we can't neglect it. आप इसको ये नहीं कह सकते यार कंपटीशन इज, कि कंपटीशन को छोड़ दो. we can't neglect it. ये है और ये रहेगा. कंपटीशन इज देयर, सो कंपटीशन तो है, बट एवरीवन इज, एक भागम दौड़ी में सबको यही है कि दैट हमें इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है. सो दैट is good, is very good, but competition is going side by side. But the word of today's generation, what it needs more cooperation चाहिए. इनको ये लगता है लाइक जैसे शेयरिंग नॉलेज, कि आप किसी को कोई बता देंगे कुछ, लाइक अगर उसके आप से कुछ पूछा, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहा, आप बताते नहीं कि अगर आप उसको बता देंगे तो उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी. आप डर जाते हैं कि उसको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा और फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरी नेगेटिव थॉट्स. बट ऐसे कुछ नहीं होता. नॉलेज बताने से नॉलेज बढ़ेगी, इट विल नॉट डिक्रीज. नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता. नो थीप इन दिस वर्ल्ड, नो वन कैन डू इट. टुडेज जनरेशन नीड्स मोर कोऑपरेशन. कोऑपरेशन चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए. लाइक कंपटीशन, अगर आप, आई विल गिव यू अ परफेक्ट एग्जांपल. केरला एंड मध्य प्रदेश, इनमें कोविड केसेस हैं. केरला के सीएम और एमपी के सीएम अगर ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, केरला के सीएम बोल रहे हैं कि मेरे स्टेट में कम कोविड केस है, एमपी के सीएम बोले मेरे स्टेट में कम कोविड केस है. अगर ये दोनों कंपटीशन पे आ गए, ठीक है, इवन इन दिस टफ टाइम, इवन इफ दैट इट विल बी नो यूज. सो द वर्ल्ड नीड्स मोर कोऑपरेशन. इससे अच्छा ये दोनों मिलकर डिसाइड करें दैट वी हैव टू कंट्रोल द चेन ऑफ द कोविड केसेस. कोऑपरेशन, अब कोऑपरेशन होगी सभी की, तभी चेन नहीं बढ़ेगी एंड वी विल सक्सीड टू कंट्रोल द पैंडेमिक. So this is, the world needs more cooperation than competition. So I think I did a lengthy video, but I want your some suggestions in the comment box, your recommendation. I can't completely change my teaching style, but yes, definitely if you will recommend me, you will suggest me, I can make some changes in it from the next video.
So tomorrow we will do the next poem for the English class 10th ICSE syllabus. We will do tomorrow next poem, that is I know why the caged bird sings. Thank you everyone. So this was everything about this poem. The stanza wise explanation, the overview, theme, the message, the poetic devices, and poet David Ruth, the American poet. Thank you.